जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ौदंड और पूरी शहर लोकारण्य है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं और सब भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। महाप्रभु बलभद्र का, सुभद्रा देवी का रथ पहुँच चुका है और महाप्रभु जगन्नाथ का रथ हम आशा करते हैं थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच जाएगा। संध्या में भारी भीड़ होने की संभावना है, उसके लिए पर्याप्त परिमाण में पुलिस का बंदोबस्त करा गया है। मैं आपके जरिए सब जनसाधारण से अनुरोध करूंगा कि जब वो पुरी आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो जो भी पुलिस द्वारा एडवाइजरी विभिन्न समय में दी जा रही है उसका ध्यान रखें, उसका पालन करें और हमारे साथ सहयोग करें। जिनका स्वास्थ्य बल नहीं है, जिनको चलने फिरने में दिक्कत है, अधिक उम्र हो गई है, रोगग्रस्त हैं और ऐसा वो अपनी खुद का आकलन करके कि फिजिकली फिट हैं दर्शन करने के लिए, आने के लिए, तभी वो यहाँ पर आएँ। अदरवाइज मैं कहूँगा कि वो थोड़ा देख कर आएँ ताकि कोई असुविधा ना हो। गुंडिचा मंदिर में भी दर्शन देंगे 7 डेज, तो इसलिए कैसे अरेंजमेंट किया गया? जैसा मैंने आपको बताया कि विस्तृत अरेंजमेंट, पर्याप्त परिमाण में बंदोबस्त करा गया है, लेकिन जन साधारण के सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और दर्शन करने की व्यवस्था करी जाती है। उसमें अगर सहयोग करेंगे, कई बार ये देखा गया है कि श्रद्धालु दर्शन भी हो गया है लेकिन वो जगह छोड़ना नहीं चाह रहा है, वो वहीं खड़ा रहना चाह रहा है, तो उससे जो क्राउड की सर्कुलेशन है उसमें असुविधा उत्पन्न होती है। उसमें वो पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग करें और जैसा जैसा वो निर्देश देते हैं उसका पालन करें। धन्यवाद। पूरा बैंक रास्ता बहुत समस्या धीरे धीरे
तरफ दोनों औरत को अच्छी तरह पकड़ेंगे और 5 मिनट में इसके बाद चढ़ाव लगाएंगे। ସବୁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ପଡ଼ିଛି ସେମାନେ ଜାଗାରେ ରହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଜଗାର ଦିଆଯିବ କିଏ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ନାହିଁ ବିନାଶ କରଣ ଆଉଟର କରଣ ସମସ୍ତେ ରହିବେ ରାଜପାଟି ଜାଗାରେ ବିନାଶ କରଣ Jai Sri Jagannath Mahaprabhu. The chariot pulling which started yesterday on the Rath Yatra festival, all the 3 chariots could not reach the Sri Gundicha temple. That's because of reasons like the Pondi was delayed a bit and the chariot pulling started a bit late. But in view of the security for all the devotees who had gathered in the Badadana, because it was already dark, we decided that the chariot pulling again will start. And that's a very great incidence that lakhs of devotees had already had darshan of the Mahaprabhu on the chariots on the first day. And today as well, when the chariot pulling resumed, again hundreds and thousands and lakhs of people, devotees had darshan, very smooth darshan today. Not only did they have darshan of the deities on the chariots, they also pulled the chariots in the Badadana, the Grand Road of Puri. It's a very divine experience for all of us. And I wish to express the gratitude of the temple administration to all the servitors, all the sevaks of the temple, as well as all the people who are engaged in this grand spectacle, namely the police personnel from the state as well as the paramilitary personnel from the Government of India, the district administration and various organs of the state government. The officials and employees of the Sri Jagannath Temple administration also did a very marvelous job, and I want to express my gratitude to each one of them. But most importantly, we are grateful and we offer our pranam and obeisance to the deities that all the rituals were carried out on time, and the devotees also had a very great experience. We wish to also thank all the devotees for following the restrictions and the guidelines which were put in place by the administration, and they are having a very good darshan today. Tomorrow is the Adapa, Mandapa, Pahantu, and the deities will go from the chariots to the sanctum in the Sri Gundicha temple. That ritual will be performed in the evening of tomorrow, that is 18th of July, and we wish and pray before Mahaprabhu Jagannath that all such rituals will be performed on time and smoothly. तो क्या कहेंगे, कैसा रीतिकांति रहेगा, कैसा ठीक ठाक पहुँच गया और अभी आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा? काल जितना भक्त लोग को दुख था, आज बिफोर टाइम में जगन्नाथ जी आ गया तीनों रात। अभी जगन्नाथ जी का जो नीति है, रथ का पर जो नीति है, अभी नीति चलेगा। महासंक्रांति पूजा जो है उसका पूजा चलेगा। फिर इसका बाद सकाल भोग जो है, पहले भोग, दूसरा भोग, तीसरा भोग चलेगा। सौंदुप तक पूजा चलेगा। जैसे भगवान को बड़ा श्रृंगार होगा, पौड़ भी होगा, भगवान सोएंगे। जैसे आगे साल में जैसा प्रॉब्लम था, इसके लिए सब हम लोग अरेंजमेंट किया है, जैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आज ही सब भगवान को दर्शन करने के लिए जितना भक्त है सब आइए, अच्छा से दर्शन करिए। आज करिए, कल भी करिए, परसों मौसी के घर में दर्शन करेंगे। कल 7 बजे जगन्नाथ जी का पौंडी होगा। सर क्या क्या करेंगे पौंडी में, क्या होता है, फिर अंदर में दर्शन में क्या व्यवस्था रहेगा? पौंडी में तो भक्त लोग बाहर में दर्शन करेंगे अच्छा से, भगवान को भीतर चले जाएंगे। उसके बाद परसों
पूजा होगा, दर्शन होगा। तो अंदर में जो दर्शन होता है भगवान का, उसका क्या महत्व रहता है दर्शकों के लिए? ये जो दर्शन जगन्नाथ जी का मंदिर में सारों साल जितना पुण्य होता है, ये मंडप में एक दिन दर्शन के लिए इतना पुण्य होता है। इसलिए ये जो मंडप है, ये जन्मस्थान है इनका, जगह में जगन्नाथ जी आए हैं। तो रिटर्न का क्या रहेगा, जैसा बाहर निकलेंगे और फिर दोबारा जाएंगे, वो कब होगा? ये तो जैसा आपका 23 तारीख को संध्या दर्शन होगा, 26 तारीख को जगन्नाथ जी फिर लौटेंगे, सब उनका इच्छा है। जय जगन्नाथ।